taken over the volume V is equal to the surface integral of the vector field taken over the area S, enclosing that volume. Is it clear? So here we have an open volume and the closed surface. We know that any volume is enclosed by surface. Okay. So the statement of this theorem is that the volume integral of the divergence of the vector field taken over the volume V is equal to the surface integral of the vector field taken over the area S enclosing that volume. Is it clear? So somehow it is related with the flux. We know that if any charge is enclosed within the volume, is it clear? Then we can say the divergence of the displacement vector or the divergence of the electric field taken over the volume V is equal to the flux, total electric flux. Is it through the surface enclosing that volume? Is it clear? सो अगर हमारे पास कोई थ्योरम है तो उसका हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका प्रूफ भी होना चाहिए. तो यहाँ पे ये डेल है, you might have been familiar that del it is a operator. It tells about what type of operation to carry out on a quantity that just follows it. Itself has no physical significance. I have already told that there are two types of differentiations on the vector field. One is the divergence, that is the divergence. Another is the curl. Is the curl. Okay, the differentiation on vector scalar, that is for the gradient of the scalar field, and here the dot product of the del and the a, that is called the divergence of the vector field, and the cross product of the del and the vector field A is known as the cross product, that is the curl of the vector field. And the right hand side, obvious, it is a flux, total flux through the surface enclosing the volume. So now we are going to prove this theorem. Is it clear? So now let us consider any arbitrary closed surface. Let us consider here it is a surface that is shown in this picture. That let us consider an arbitrary surface bounding or enclosing a volume V. So here the volume V, it is enclosed by the area S. Is it clear? So let us consider an arbitrary closed surface, okay, bounding a volume V. Is it clear? तो इसके बाद होता है लेट द नंबर ऑफ, और ये जान लीजिए, इसको हम लोग डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग जो है, सॉरी, दैट इज अ होल वॉल्यूम, एंड दिस होल वॉल्यूम इट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट्स. इट मे बी सेड as the compartments. Okay, so let us consider the number of compartments. Is it clear? The number of compartments making this volume V is n. Is it clear? Here I've already told that any arbitrary surface is bounding a volume V, and this volume, it is divided into large number of components. And also let us consider the number of components making this volume is Bn. So there are n number of compartments. Is it clear? So let us say any ith volume, that is the delta Vi, as the volume of the ith compartment. Okay, and the surface bounding this compartment, is it clear? Delta dvi will be referred to as Si. So Si is the we can say the volume delta Vi is enclosed by, bounded by the surface Si. Is it clear? So let us consider the number of compartments making the volume. Is it clear? Bn. Is it clear? And let us say that the delta Vi, as a volume of the ith compartment enclosed by, bounding by the surface Si. Is it clear? Or now let us consider the summation. नाउ लेट अस कंसीडर द समेशन. मान लो कि अगर ए कोई वेक्टर फील्ड है और डीएस जो है एरिया ऑफ एनी कंपार्टमेंट है, तो ए डीएक्स क्या हो जाएगा, मतलब द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द vector field A taken over the area Si, it represents the flux through the surface Si, that is bounding the volume dVi.
इज इट क्लियर? तो इस तरह अगर हम टोटल फ्लक्स की परिकल्पना करते हैं तो हम A डॉट डी एस एस वन प्लस A डॉट डी एस एस टू प्लस A डॉट डी एस एस थ्री सो ऑन। मतलब यहाँ पे एक चीज गौर करो कि यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लिया, ith कंपार्टमेंट और jth कंपार्टमेंट। तो यहाँ बहुत सारा कंपार्टमेंट्स है, हर एक कंपार्टमेंट से वेक्टर फील्ड निकल रहा है, तो हर एक कंपार्टमेंट्स का अपना सरफेस इंटीग्रल A डॉट डी एस होगा। इज इट क्लियर? तो अगर हम A dot ds surface integral of the A taken over the area your S your we can say that is the your S1, that is the S2 for S3 for S5 for S6 and so on, और सबको जोड़ दोगे तो ये क्या देगा? टोटल फ्लक्स that is the over the area S enclosing the volume। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे वॉल्यूम एलिमेंट को छोटे छोटे डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, कंपार्टमेंट्स कहते हैं, और एडजॉइनिंग कंपार्टमेंट्स है, और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि डेल्टा वी आई जो है ith कंपार्टमेंट का वॉल्यूम है एंड दैट इज एनक्लोज्ड बाय द एरिया एस आई। मतलब V1 S1 V2 S2 V3 S3 V4 S5, इस तरह V1 से लेकर Vn हमारा टोटल जो है योर डेल्टा V1 से लेकर डेल्टा Vn हमारा वॉल्यूम ऑफ कंपार्टमेंट्स है, और दैट इज बाउंडेड बाय द एरिया S1 टू Sn। इज इट क्लियर? तो अगर हम इसको समेशन ले ले सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n और 8 डॉट ds और फॉर S1 SI और ये i इज इक्वल टू 1 टू n, तो ये समेशन हो जाएगा दैट इज 8 डॉट ds फॉर S1 प्लस 8 डॉट ds फॉर S2 प्लस 8 ds3 फॉर S3 एंड सो ऑन। And in general, SI. What is SI? SI is the area of the ith compartment enclosing the volume dVi may be made up of part or parts of the external surface as well as interior common surfaces between adjoining compartments। अगर हम बात करते हैं let us say that is ith compartment का, तो ith compartment का area हो गया that is the SI and that is enclosing the volume dVi। इज इट क्लियर? तो हम कहते हैं कि द पार्ट या पार्ट्स ऑफ एसआई मे बी द पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल एरिया, that may be the part of this external area। is it clear? as well as common interior surface between adjoining compartments। अगर 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 मान लीजिए ये कंपार्टमेंट है जहां पे मेरा ये देखिएगा माउस का ये है पिन, तो कहते हैं कि ये वॉल्यूम का ये इट मे बी द पार्ट ऑफ द योर एसआई, it is made up of, ठीक है, part of the external area as well as the common interior surface। is it clear? that is a common interior surface। एक मिनट, हाँ सोनू बोलो। हेलो, अनम्यूट करो अपने आप को सोनू, हाथ उठाओ, अनम्यूट करो। यस सर। बोलो क्या पूछ रहे हो? सर कुछ नहीं, कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है, और बीच बीच में हाँ बोलते रहोगे तो हमको मालूम चलेगा कि आवाज जा रही है मेरी, ठीक है ना? ओके सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो हम कहते हैं कि जो ith कंपार्टमेंट है दैट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, पार्ट और पार्ट्स दैट मे बी द, ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये हमारा जो है इन जनरल एसआई मे बी मेड अप ऑफ पार्ट और पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ दिस एक्सटर्नल सरफेस, ये जो तो वॉल्यूम का एक्सटर्नल सरफेस है, एज वेल एज the common interior surface between adjoining compartments। अब मान लो कि ये ith और jth के बीच का ये कॉमन है, अगर इसके ऊपर वाला देखोगे तो ये कॉमन है, इसके बगल में एडजेसेंट देखोगे तो ये कॉमन है, तो कह सकते हैं कि जो मतलब जो हमारा जो एस आई है जो डेल्टा वी आई को इंक्लूज कर रहा है वो जो है बना हुआ हो सकता है जो कुछ जो तुम्हारा उसका कुछ पार्ट्स जो है एक्सटर्नल सरफेस का पार्ट हो सकता है एज वेल एज कॉमन इंटीरियर सरफेस बिटवीन द टू एडजॉइनिंग कंपार्टमेंट्स। इज इट क्लियर? अच्छा भैया चलो बात है, अब एक चीज गौर करोगे
कि यहाँ पे अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि यहाँ पे देखो एक दो ith और jth को, अब हम इसको जो है मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये हमारा जो है दो मतलब हमारा डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट हो गया, ठीक है, SI और SJ। इज इट क्लियर? तो देखोगे कि SI जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसका जो ये सरफेस है, कॉमन इंटीरियर सरफेस है, वहां पे जो ith जो मतलब जो यूनिट वेक्टर होगा नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ SI होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा, ठीक है। अब तुम एक चीज गौर करोगे कि यस तुम्हारा जो SJ है, SJ का जो मतलब जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो SI के लिए इनवर्ड होगा। ये देखो कॉमन इंटीरियर सरफेस है, तो कॉमन इंटीरियर सरफेस पे SI का जो नॉर्मल SI के सरफेस पे जो एडजॉइनिंग कंपार्टमेंट मतलब कॉमन इंटीरियर सरफेस पे जो नॉर्मल होगा वो SJ के लिए इनवर्ड होगा और SI के लिए आउटवर्ड होगा। बाकी अगर ये जो SJ का जो कॉमन इंटीरियर सरफेस है उस पे जो नॉर्मल होगा वो SI के लिए इनवर्ड होगा, SI के लिए क्या होगा, इनवर्ड होगा। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यस सर तो जब यहाँ पे फ्लक्स की हम गणना करेंगे तो एक ये आउटवर्ड है तो A डॉट ds हो जाएगा और ये इनवर्ड इधर है तो माइनस A डॉट ds हो जाएगा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कॉमन इंटीरियर सरफेस का। कॉमन इंटीरियर सरफेस ऑफ फ्लक्स की गणना करो ना, जितना यहाँ 8 डॉट ds इधर है, देखो एरिया इधर है, इसलिए यस सर फ्लक्स जब इधर जाएगा तो नेगेटिव फ्लक्स होगा और ये जो पॉजिटिव फ्लक्स होगा, तो जितना फ्लक्स घुस रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 फॉर कॉमन 0 इंटीरियर सरफेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले मुझे बताइए। यस सर वेरी गुड। तो हम कह सकते हैं कि नाउ लेट अस एग्जामिन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि all contribution to this above summation, all contribution to this above summation, ठीक है, यस सर okay, that involve interior common surfaces between the adjoining compartments, ठीक है, will add यस up to 0, all contribution to the above summation that involve interior common surface will add up to 0 contribution and we may write। तो बहुआ, तो जब हम इसको जो है समेशन जो हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं ये समेशन हुआ, तो A डॉट ds फॉर S1, A डॉट ds प्लस S2, और हमने कहा कि जो कोई भी ith कंपार्टमेंट का जो SI है दैट में इट इज मेड अप ऑफ पार्ट और पार्ट्स दैट मे बी द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द S as well as the common interior surface। तो जब हम कहते हैं कि that is the contribution, that is the total contribution in this summation due to those terms involved with common interior surfaces will add up to 0। तो जब कॉमन इंटीरियर सरफेस का 0 हो जाएगा तो अंत में हमारा क्या बचेगा, आउटर सरफेस बचेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि जितना भी यस सर ज्वाइनिंग कंपार्टमेंट्स है तो उसका कॉमन इंटीरियर सरफेस पे जो नेट फ्लक्स होगा 0 हो जाएगा, तो सब फ्लक्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो अंतोत्तोगत्वा क्या होगा, देयर विल बी द टोटल फ्लक्स ऑफ द फील्ड ओवर द एरिया एस एनक्लोजिंग द वॉल्यूम वी। तब हम धीरे नीचे से कहां चले जाएंगे, ऊपर में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर में सारा कंपार्टमेंट्स एडजॉइनिंग टू ईच अदर है, सबका कॉमन इंटीरियर सरफेसेस है, इसलिए जो है जो नेट फ्लक्स होगा अंदर में वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा समेशन था, ठीक है, दैट इज A डॉट ds S1 प्लस A डॉट ds S2 प्लस A3 डॉट ds S4। अच्छा, परिकल्पना कीजिए, आपने जो है एक इंटीग्रेशन की परिभाषा पढ़ी होगी कि what is the meaning of minus from 0 to h या some in a lower limit to upper limit and y dx है। तो y dx को जब इंटीग्रेट करते हो तो दैट इज नथिंग बट द व्हाट, अगर स्मॉल उसको इसमें सेगमेंट्स में बांट देते हो तो वो क्या देता है, वो एरिया देता है, दैट इज S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। जब टोटल एरिया को जोड़ देते हो तो दैट विल गिव द इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ पे हमारा लाइन की जगह क्या है, सरफेस है। तो मान लो DS1 से A जा रहा था DS, फिर DS2 से फिर A जा रहा था A डॉट ds। तो इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स को जब तुम सम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल तुम्हारा क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। A डॉट ds कहां पे, व्हेन द A डॉट ds टेंड टू 0। इज इट क्लियर? तो एक यस पॉइंट हुआ, तो इसको टोटल जब सम करोगे तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सरफेस इंटीग्रल।
It one is a definition of the surface integral. That is for S1 plus S2 plus S3 plus S4. It means that the total flux over the area is enclosing the volume V. So that is the definition of the volume surface integral. Is it clear? Clear है भैया Yes, कि sir. हर एक सरफेस से Yes. ए डॉट डीएस लोगे और उसको पूरे सरफेस के लिए तुम सम कर दोगे तो दैट इज नथिंग बट द योर टोटल फ्लक्स एंड टोटल फ्लक्स इज नथिंग बट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द ए टेकन ओवर द एरिया इज enclosing that volume. Is it clear? So that is the definition of the surface integral, total flux of the surface integral. और इस समेशन में मैंने आपको कहा कि all contribution to the summation for those terms or that involved common interior surfaces will add up to 0. तो हमारा ये केवल ये बच गया. अब जो है अब अच्छा अब देखिए यहाँ पे तो हम अब इसको जो है क्या किए कि अगर 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 n टेन टू इनफाइनाइट नहीं होगा तो आप सरफेस पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी और यहाँ हम कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए हम जो है कहते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी वी कंसीडर द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स टू बी इनफाइनाइट so that n tend to infinity and delta vi tend to 0 in that limit. Let us rewrite the last equation. इसको फिर से rewrite करते हैं. Limit n tend to infinity from I is equal to 1 to n and the surface integral of the A taken over the area is for S1, for S2, for S3, for S4. अब क्या करते हैं कि इसको जो है हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को आप देखिए ए डॉट डी एस में यहाँ पे देखिए डेल्टा वी आई और नीचे में डेल्टा वी जितना से डी आई डी वी आई से गुना किए और डी वी आई से भाग दे दिए. इज इट क्लियर? और यहाँ पे n टेंड टू इन्फिनिटी Yes. है और वॉल्यूम जो है टेंड्स टू 0 है और i इज इक्वल टू 0 टू n और n इन्फिनिटी है. तो मेरे बच्चे आप तुरंत दिमाग में आएगा कि अरे सर ये वाला तो हमको पढ़ा दिए हैं पहले. तो पूछेगा क्या है तो कहेगा इट इज अ डेफिनेशन ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड. The divergence of the vector field at a point is a scalar quantity whose magnitude is the net outward flux per unit volume through that point. कहेगा सर ये तो आप तो फिर तो आप हर एक डाइवर्जेंस का हर एक एरिया जो पॉइंट है हर एक डीवी जब 10 to 0 होता है सर तो पॉइंट हो जाता है और उस पॉइंट पे आप कहते हैं कि ये डाइवर्जेंस हो जाता है फॉर S1 फॉर डाइवर्जेंस ऑफ A फॉर S2 डाइवर्जेंस ऑफ A फॉर S3. अच्छा तो सर इसको तुरंत आप लिख दीजिएगा सर तब आप कहाँ इस तरह लिखिए इसको कि दिस वन इट में बी रिटन एज ये इसको क्या कर सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए it can be written as a divergence of A and dV. So that is this one is the definition of the volume integral. This is the definition of the volume integral. Divergence of A for your S1, that is for dV1, plus divergence of A for S2, matlab dV2, for divergence of A for S3. So on, divergence of A dV, divergence of A dV1 plus divergence of A dV2 plus divergence of A dV3 और dV टेंड टू 0 है तो टोटल पॉइंट को मिला दीजिएगा तो एक वॉल्यूम बनेगा. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट. सो दिस राइट हैंड साइड इट मे बी रिटन एज द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड टेकन ओवर द वॉल्यूम V enclosed by the area S. Is it clear? तो हम तुरंत जो है डाइवर्जेंस ऑफ A dV तो डाइवर्जेंस ऑफ A dV जो होता है इसको लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ A dV और ये किसके बराबर है surface integral of the A taken over the area is and the left hand side is equal to right hand side. That is a proof of the theorem. Any problem? No, sir. Okay, so here हम लोगों ने कहा कि divergence of the vector field taken over the volume V, divergence of the vector field taken over the volume V is nothing but the surface integral of the vector field taken over the area S enclosing that volume. So we know that any volume is enclosed by the area. ये space infinite था, बाकी इसमें छोटा सा room बना दिए, तो now the open volume is enclosed by the area. Is it clear? So that is the relation between the open volume and the enclosed area. कोई भी space में किसी charge को रख दीजिएगा, तो then the electric lines of force
ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, उसके चारों तरफ एक एरिया खींच दीजिएगा, तो नाउ दिस वॉल्यूम इज एनक्लोज्ड, सो दैट इज द E dot ds, that is the total electric flux, and total electric flux through that area is nothing but the charge enclosed, and that is a Gauss's theorem. Is it clear? And henceforth this one is called the Gauss divergence theorem. क्लियर हुआ ना कि गॉस क्यों नाम लिए? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, सागर अनम्यूट करो। यस सर। सागर समझ में आया कि यस सर। इसको हम गॉस क्यों कहे? यस सर। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ए की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो E, तो E डॉट ds क्या देता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द फ्लक्स, यस सर। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक, याद रखिएगा यहाँ D लिखिएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, द D डॉट ds, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जब E डॉट ds लिखते हैं तो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थ्रू अ क्लोज सरफेस enclosing the volume V, and what is inside the volume? The charge is inside the volume. यस सर। सर सर थोड़ा सा ऊपर में ना थोड़ा सा नहीं समझ पाए थे हम। कहाँ बताइए आप? थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा। चलिए स्क्रॉल कर रहे हैं, बताइएगा बताइएगा। चलिए आइए, कहाँ पे? यहीं पे सर, यहीं सर, यहीं पे। देखो यहाँ पे एक मिनट बेटा, बोलिए आलोक जी। वेरी गुड मॉर्निंग, बोला जाए। हाँ, हैंड्स ऑन का स्टार्ट करा दीजिए ना जी। हाँ, छोटा छोटा, अरे छोटे छोटे बच्चों को बुला के, तो डायरेक्टर को बोलिए ना कि अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है तो आप जो है वर्चुअल लैब में जाके उनको समझाइए, सबको दिखा के, मतलब अगर जो लैब है उसको अगर आपके पास होगा वर्चुअल लैब का। अच्छा, अच्छा अच्छा। तो सर को, हाँ, तो सर को आप बता दीजिए कि जो है कि सर हम लोगों ने जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है उसको जैसे आप लोग वर्चुअल लैब के थ्रू करवा दिया, बता दीजिए उनको लग रहा है कि थ्योरेटिकल क्लास हुआ है, तो आप उनको कहिए कि सर जो है, ये उनको बताइए ना कि सर वर्चुअल लैब का भी जो है इस समय जो है दो चीज चल रहा है कि थ्योरेटिकल चल रहा है और दूसरा वर्चुअल लैब चल रहा है। हाँ हाँ, तो वर्चुअल लैब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है कि वर्चुअल लैब से करवाने के लिए, क्योंकि अंदर में लैब अभी ड्यू टू पैंडेमिक है कि जिस तरह आप लोग बच्चों को नहीं बुला रहे हैं उसी तरह तो हम लोगों ने वर्चुअल लैब की व्यवस्था की, तो वर्चुअल लैब के थ्रू हो गया, बोल दीजिए उनको। हाँ, कह दीजिए, उनसे बात कर लीजिए एक बार, हम फिर से उनको, हम उसको एक वर्चुअल हम करवा दे रहे हैं, बातचीत कर लीजिए, ठीक है? जी, बोला जाए। हम्म 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 आप इंडिविजुअली भेज दीजिएगा और एक उसका कॉपी हमको डायरेक्टर को भेज दीजिएगा। हाँ, अटेंडेंस, पूरा अटेंडेंस का तो एक, अब क्या कीजिए, क्यूमुलेटिव अटेंडेंस का रिपोर्ट भेज दीजिएगा। मेल पे नहीं जाएगा तो उसको जो है इस पे ड्राइव पे भेज दीजिएगा, ड्राइव लिंक भेज दीजिएगा। हाँ, लिंक दे दीजिएगा, वही वही हम भी कह रहे हैं कि लिंक है। हाँ, पूरा रिपोर्ट, हाँ, कि उसको हम लोग लगा देंगे कि ये बच्चे सब जो है पूरा टोटल क्लासेस की है। हाँ, ये पूरी, ठीक, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, चले चले, राइट। और एक बार सर से बोल दीजिए कि अभी सारे जगह वर्चुअल का चल रहा है और गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है, ठीक है?
और दूसरा है कि अगर किसी बच्चे को हो गया तो विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वहाँ भी लैब में भी बुलाना, आप कह दीजिएगा, नहीं कह दीजिएगा कि लैब के अंदर में है कि ऑन द बाय। नहीं नहीं कह दीजिए कि गार्जियन के, नहीं नहीं कि गार्जियन के परमिशन से, और वो जो है इंस्टीट्यूशन में भी गवर्नमेंट भी आपके अलाउ नहीं की हुई है, तो हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं। और दूसरा कहिएगा किसी के लिए हम लोग वर्चुअल लैब से करवा रहे हैं, टोटल चीज जो है सारा जो इक्विपमेंट्स है उसके पावर सेक्टर का, जनरेशन का, सब कहिएगा हम लोग वर्चुअली करवा दे रहे हैं। ठीक है तब, ओके, थैंक यू, थैंक यू। हेलो। यस सर। हाँ, टाटा पावर में एक्चुअली तुम लोग भी जाओगे, तुम लोग भी ट्रेनिंग करवाएंगे भाई। टाटा पावर मैथन में सब बच्चों का हम करवा रहे हैं वहाँ पे ट्रेनिंग, 400 बच्चे का। तो वही से रिपोर्ट आया था, सबको हो गया। अब केवल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, बड़ा बड़ा वो मशीन पे जाके काम करना है, तो वो तो अभी पैंडेमिक में नहीं हो पा रहा है। तो वही बात हो रही थी कि वर्चुअल लैब होता है। आप ही जैसे लैब नहीं कीजिएगा तो इंजीनियर बनकर क्या कीजिएगा, तो एक वर्चुअल आजकल आ रहा है लैब, कि आप टोटल स्क्रीन पर ही बैठ कर अपना एक्सपेरिमेंट जो है, ठीक है, वो आइएगा। बाकी होता है ना भाई, अब देखिएगा कैसे काम होता है, असेंबल कीजिएगा, सिमुलेशन कीजिएगा, बहुत जरूरी होता है। तो वर्चुअल लैब है, तो बोले उस पर करवाने के लिए, सॉरी। चलिए, तो ये देखिएगा कि हम लोगों ने कहा कि मान लो कि एक एनी आर्बिट्ररी सरफेस एस है एनक्लोजिंग द वॉल्यूम, इज इट क्लियर। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि द होल वॉल्यूम इट इज डिवाइडेड इनटू एन नंबर ऑफ डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट्स, और वी कैन से दैट दिस होल दैट इज द नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स मेकिंग दिस वॉल्यूम आर एन, इज इट क्लियर। तो बी एन, इज इट क्लियर। तो हम अब ये जो है, और कहते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आई इज इक्वल टू 1 to n होगा और n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। फिर हम लोगों ने इसको एज्यूम किया कि लेट अस से देयर आर द ith एंड jth कंपार्टमेंट, एग्जांपल लिया। और फिर हम लोगों ने कहा कि SI इज द एरिया ऑफ द ith कंपार्टमेंट एंड दैट इज एनक्लोजिंग द वॉल्यूम dVi, इज इट क्लियर। तो अब बात उठती है कि फिर कहा गया कि जो SI है इट इज मेड अप ऑफ, SI जो है बना हुआ है भाई कितने तरह के सरफेस से हैं, इट में बी पार्ट और पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस। किसका एक्सटर्नल, टोटल वॉल्यूम डीवी का, मतलब दैट इज द सरफेस एस, दैट इज द सरफेस एस। तो ये कहता है कि ये जो सरफेस एस है, जो डेल्टा जो एस आई है, इज मेड अप ऑफ, कहता है बना हुआ है किसका भाई, पार्ट और मे बी द पार्ट और मे बी द पार्ट्स ऑफ व्हाट, एक्सटर्नल सरफेस एस आई एस, हियर एस, ठीक है, एज वेल एज कॉमन इंटीरियर सरफेसेस बिटवीन एडजॉइनिंग कंपार्टमेंट। अब कॉमन, अब मान लो एस आई और एस जे दो कंपार्टमेंट्स है, तो एस आई का जो एक्सटर्नल जो एक पोर्शन हो सकता है, वो हो सकता है कि ये जो वॉल्यूम का जो आउटर सरफेस है एस, उसका कुछ पार्ट हो सकता है, और नहीं तो क्या होगा, कॉमन इंटीरियर सरफेस होगा बिटवीन एडजॉइनिंग कंपार्टमेंट। जैसे ये दिख रहा है, दो के बीच में, एस आई और एस जे के बीच में ये जो वॉल जो है, जहां पे पॉइंट और जो एरो वेक्टर्स है, नॉर्मल वेक्टर, ये हमारा कॉमन सरफेस है। तो एस जे के लिए एस आई का जो कॉमन सरफेस है उसका नॉर्मल जो है इनवर्ड होगा और एस आई पे आउटवर्ड होगा। एस जे के लिए क्या होगा कि एस जे का जो कॉमन सरफेस है उसका जो नॉर्मल होगा एस आई के लिए इनवर्ड होगा, और सॉरी एस आई के लिए क्या होगा, इनवर्ड होगा, और एस जे के लिए आउटवर्ड होगा। तो एस आई से जो फ्लक्स निकल रहा है वो एस जे में घुस रहा है, इज इट क्लियर। और जो यस सर। और घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, क्योंकि यस सर। ये इज इट क्लियर। और एस जे के लिए जो अब एस जे का जो कॉमन बाउंड्री है उसमें निगेटिव फ्लक्स होगा, इज इट क्लियर, क्योंकि उसका एरिया आउटवर्ड है, अब वेक्टर का फ्लो क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, इज इट क्लियर। तो ये माइनस ए डॉट डी एस होगा, और एस आई के लिए क्या हो जाएगा, ए डॉट डी एस हो जाएगा। तो एस जे के लिए माइनस ए डॉट डी एस, और एस आई के लिए क्या, ए डॉट डी एस। तो दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो ए डॉट डी एस माइनस ए डॉट डी एस, दिस इज नथिंग बट द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जितना करंट घुस रहा है, जितना चार्ज घुस रहा है, जितना फ्लक्स ऑफ जे है, जितना फ्लक्स ऑफ डी है, जितना फ्लक्स ऑफ ए है, वो नेट जो होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जब कॉमन इंटीरियर सरफेसेस का जो अगर कंट्रीब्यूशन लेते हैं टोटल फ्लक्स का, दैट इज ए डॉट डी एस सिग्मा ए डॉट डी एस फ्रॉम योर आई टू एन जो यहाँ पे है,
तो इसमें कॉमन इंटीरियर सरफेस का जो है कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, और जो बचेगा वो एक्सटर्नल सरफेस का कंट्रीब्यूशन बचेगा। इज इट क्लियर? सो तो हम कह सकते हैं कि सर हाँ बोलो। आपका फेस नहीं दिख रहा है सर। मेरा फेस नहीं दिख रहा है क्योंकि नहीं अभी अभी हम ये कर रहे हैं ना, क्या करते हैं, शेयर वो कर रहे हैं। नहीं नहीं स्क्रीन पे सर, स्क्रीन पे ना हाँ कुछ धुंधलेला टाइप से आ रहा है, मतलब पूरा आप नहीं दिख रहे। अच्छा, अब दिख रहे हैं? यस सर। अब दिख रहे हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक, अब दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है? यस सर यस, पूरा क्लियर है। पूरा क्लियर है। अच्छा रुको तो देखते हैं थोड़ा सा सेटिंग में जाके अगर हो जाता है। सेटिंग, अच्छा कोई बात नहीं। तो ठीक है, दिख रहा है आप चेहरा ना? यस सर। ठीक है। हम तो बड़ा बढ़िया सेटिंग किए थे अपने आप में, समुद्र के किनारे जुक का बैकग्राउंड। बाकी वो जो है अब थोड़ा सा आदमी को इनोवेटिव होना चाहिए। तो ये आप क्लियर हो गया? यस सर यस। या गुड। तो ये हमारा जो है, जब इसको सॉल्व किए तो ये हमारा जो है निकल गया। अब मैंने कहा कि भैया दूसरा है कर्ल के साथ एक थ्योरम रिलेटेड, स्टोक्स थ्योरम है। तो ये स्टोक्स का नाम तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आता है, स्टोक्स डिवेयर थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम कहता है रिलेट्स ए सरफेस इंटीग्रल टू ए क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। मान लो कोई, मैंने कहा कि एनी ओपन वॉल्यूम इज एनक्लोज्ड बाय एरिया, एनी वॉल्यूम इज एनक्लोज्ड बाय एरिया। अगर ये दीवार के, तुम देखते हो कि एक रूम जो है पेयर ऑफ 3 वॉल्स है, 1 2 3 4 5 6, अब कोई एक वॉल ले लो। इज इट क्लियर? तो देखोगे कि इस ये एरिया जो है, दैट एरिया इज बाउंडेड बाय ए कंटूर और ए बाउंड्री। So any volume is enclosed by area, and any open area is bounded by a curve, contour, or boundary. Is it clear? So Stokes theorem, it relates your line surface integral with the line integral. Why the surface integral? Because any surface is enclosed by line. So here the Stokes theorem states that the surface integral of the curl of the vector field taken over the area S is equal to the line integral of the vector field taken along a path, taken along a boundary, enclosing that area. Enclosing that area. Is it clear? So that is the relation between the surface integral and the line integral. That is the relation between the surface integral and the line integral. आपको example बता देंगे। अगर ये a is equal to h हो, therefore the curl of h is curl of h dot ds is equal to h dot dl. And what is the h dot dl? h dot dl, समझ रहे हो ना? Curl of h dot ds is equal to h dot dl. And what is the h dot dl? According to the Ampere circuital law, this is equal to I. And the current I is equal to the surface integral of the j dot ds. Is it clear? So curl of h dot ds is equal to I, h dot dl is equal to I, is equal to the surface integral of the j taken over the area your s. So that is the j dot ds. So equate the left hand side and the right hand side, then you will get curl of h is equal to j. That is the physical significance of this स्टोक्स थ्योरम। तो ये हमारा जो है स्टोक्स थ्योरम है। तो भैया इसका किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट होता है और साथ ही साथ प्रूफ होता है। एक चीज गौर कीजिएगा कि जो हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ सीधा सीधी कहता है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड टेकन ओवर द एरिया एस इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड टेकन along a boundary enclosing that area. Is it clear? So that the relation between the surface integral and the line integral, it doesn't involve any type of coordinate system. ओके सो कोई भी जो थ्योरम होता है वो कहीं भी जो है मतलब एग्जिस्ट करता है, चाहे पानी के अंदर हो, पानी के बाहर हो, समुद्र पे हो, पहाड़ पे हो, थ्योरम इट डजंट डिपेंड अपॉन द योर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इज इट क्लियर? कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाके इसका प्रूफ दे सकते हो, इसका कुछ न्यूमेरिकल को डिराइव कर सकते हो कि थ्योरम इंडिपेंडेंट होता है। तो अब और आपको मैंने बताया था कि द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ डीएस,
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ डीएस क्या हो जाएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा। अगर आप कोई बाउंड्री पर एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिएगा तब जाके आउटवर्ड नॉर्मल होगा। देखिए ऐसे, अगर आप जो है एंटी क्लॉकवाइज, मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा और स्क्रीन के पीछे क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो मेरे लिए जो एंटी क्लॉकवाइज होगा सर्कुलेशन जो है वो आउटवर्ड उसका जो है एरिया पर होगा। इज इट क्लियर? So the positive direction of ds is related to the positive sense of describing contour, see, according to the right hand rule. Is it clear? The screw rule. नाउ अब इसका प्रूफ पे जाते हैं। तो जैसे वहां पे हम लोगों ने कहा था कि द आर्बिट्ररी एरिया एस एनक्लोजिंग द वॉल्यूम, तो यहाँ पे कहते हैं नाउ लेट अस कंसीडर द एनी आर्बिट्ररी एरिया, आर्बिट्ररी कर्व और कंटूर सी enclosing the area S. So here the area S is enclosed, bounded by a closed path, closed curve, closed periphery, or the contour C. Is it clear? Now let us divide the surface S, is it bounded by the contour in differential elements of the area ds1, ds2, ds3, etc. And for each such area, let us form a dot dl. अगर अब देख लो कि यहाँ पे जो है जो हमारा जो टोटल एरिया था उसको हम लोग इट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट एरियाज जो है उसमें ds1, ds2, ds3 में इसको हम डिवाइड कर लिए। वहां पे हमारा एडजॉइनिंग कंपार्टमेंट्स था, यहाँ पे हमारा एडजेसेंट लूप है। याद कीजिएगा कि यहाँ पे जब हम इस एरिया को डिवाइड करते हैं दैट इज बाउंडेड बाय द कंटूर सी, देन इन दैट केस वी हैव द लार्ज नंबर ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट्स, area elements. Is it clear? Bounded by the contour C1, C2, C3. Is it clear? And all contours are adjacent to each other. वहां पे adjoining to each other था, यहाँ पे adjacent to each other. तो कोई भी हम यहाँ देखिएगा DS1 है, DS2 है, DS3 है, and each element is differential area is enclosed by the contour C1, C2, C3. और यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव है एरिया पर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब हमको A डॉट dl निकालना है, मतलब द ट्रांसलेशन और द सर्कुलेशन ऑफ द वेक्टर फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड टेकन अलोंग अ पाथ एनक्लोजिंग दैट इज एनक्लोजिंग और बाउंडिंग दिस एरिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम A डॉट dl निकालेंगे। कोई भी हम एक पर्टिकुलर एरिया को लेते हैं, इट इज बाउंडेड बाय दिस कंटूर C1। इज इट क्लियर? तो इस C1 के लिए जब हम A डॉट dl निकालते हैं, C2 के लिए डॉट dl निकालते हैं, C3 के लिए डॉट dl निकालते हैं, and the number of loops, a number of loops making this area bn. Is it clear? Just like in that case, the number of compartments making the volume bn. So here also the number of loops or the number of differential area elements making the area is bn, supposed to be n. Is it clear? तो अगर हम a डॉट dl एक के लिए निकाले, a डॉट dl दूसरे के लिए निकाले, a डॉट dl तीसरे लूप के लिए निकाले और सबको जोड़ दीजिएगा तो वो हो जाएगा सिग्मा I is equal to 1 up to n और a डॉट dl, क्योंकि a डॉट dl for C1 plus a डॉट dl for C2 प्लस a डॉट dl फॉर C3, जब इसको टोटल लीजिएगा तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा सिग्मा a डॉट dl फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो जब हम इसको a डॉट dl फॉर ds1, a डॉट dl फॉर ds2, a डॉट dl फॉर ds3 की बात करते हैं तो ये हो जाता है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सरफेस इंटीग्रल a डॉट dl। अब कहिएगा सर ये a डॉट dl के बराबर क्यों हो गया? क्योंकि ये जस्ट यहाँ पे सिग्मा, यहाँ जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे को सिग्मा डाल दीजिए, यहाँ पे ऐसे सिग्मा, ये सिग्मा और a डॉट dl और यहाँ पे लिख दीजिए फॉर dsi। सो दिस वन a डॉट dl फॉर C1 सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n। ये जो देख रहे हैं a डॉट dl ds1 प्लस a डॉट ds2, तो ये दैट इज समेशन dsi a डॉट dl। इज इट क्लियर? इज इक्वल टू a डॉट dl। तो क्यों ये आ गया? ये a डॉट dl लाइन इंटीग्रल ऑफ द a टेकन अलोंग अ पाथ एनक्लोजिंग दिस होल एरिया। तो कहिएगा सर आप बताइए क्यों आप बाहर में चले गए, आप अंदर में घूम रहे थे, सर्कुलेट कर रहे थे, तो अंदर में सर्कुलेट करते करते आप बाउंड्री पर क्यों पहुंच गए और आप अंदर नहीं करे बाउंड्री पर घूम रहे हैं?
तो आखिर बाउंड्री पर क्यों घूम रहे भैया? तो आप कोई दो एडजेसेंट लूप ले लीजिए, आप ले लीजिए ये वाला लूप और ये वाला लूप। तो गौर कीजिएगा कि ये लूप में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये चल रहा है। तो अब ये कॉमन जो बाउंड्री है वहां पे हम लोग कॉमन क्या लिए थे, कॉमन इंटीरियर सरफेस लिए थे। यहाँ सरफेस तो नहीं है, यहाँ तो लाइन है। तो जब हम कॉमन लाइन की बात करते हैं, ये कॉमन लाइन की बात, ये देखिए कॉमन लाइन है दो लूप के बीच में। तो जब इधर चल रहे हैं ऐसे तो ये ए डॉट डीएल होगा, और इधर वाला जब ऐसे आ रहे हैं तो ये ऐसे जा रहा है। एक के लिए देखिए ये क्लॉकवाइज हो गया और इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये कॉमन लाइन पे एक के लिए ए डॉट डीएल होगा और दूसरे के लिए माइनस ए डॉट डीएल होगा। तो यहाँ पे नेट जो है लाइन इंटीग्रल हो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब कहते हैं कि द कंट्रीब्यूशन टू दिस, द कंट्रीब्यूशन टू द एबव समेशन, द कंट्रीब्यूशन टू दिस एबव समेशन, ठीक है, फॉर दोज टर्म्स involving the common boundary will add up to zero. Is it clear? Will add up to zero. And the contribution to the summation due to those terms that involve the external surface have been reinforced. मतलब कि यहाँ पे जो ए डॉट डीएल, ए डॉट डीएल, ए डॉट डीएल, ए डॉट डीएल, ये क्या हो जाएगा, हैव बीन रीइंफोर्स्ड। ये जो कंट्रीब्यूशंस है, जो कंट्रीब्यूशन है ड्यू टू those terms involving the external boundary have been reinforced. But for those terms involving the common boundary between two adjacent loops or the adjacent loops will add up to zero. तो अंदर का सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और अंत में वेक्टर फील्ड जो है ये बाउंड्री पर लगेगा रोटेट करने। चला था अंदर से और अंत में क्या होता है, इस बाउंड्री पर चलता है। सो हियर द वेक्टर फील्ड ए डॉट डीएल, 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 ए डॉट डीएल। So a dot dl, a dot dl, a dot dl, that is nothing but the line integral of the A taken along a contour, enclosing that area. So here we can write here this one is equal to a dot dl. अच्छा भैया, तो a dot dl, तो अच्छा a dot dl को आप इसको क्या लिख सकते हो? What is the a dot dl? A dot dl for ds1, a dot dl for ds2. तो भैया a dot dl को हम क्या लिख सकते हैं? What is the definition? What is the definition? What is the definition of the curl of the vector field? The curl of the vector field is a vector quantity the curl of the vector field at a given point is a vector quantity whose magnitude is the maximum circulation or the maximum value of the line integral per unit area about the periphery or the curve. ठीक है, तो भैया तो यहाँ पे a डॉट डीएल किसके लिए हो गया, दैट इज इक्वल टू द कर्ल ऑफ a डॉट ds. मैंने कहा कि व्हाट इज द कर्ल ऑफ a? कर्ल ऑफ a, इट इज नथिंग बट द कर्ल ऑफ a is a vector field whose magnitude, कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड at a given point is a vector quantity whose magnitude is the maximum circulation or the maximum value of the line integral per unit area taken along a path about that point. तो याद कीजिए ये जो कर्ल ऑफ ए डॉट ds हो गया, ये this one is equal to कर्ल ऑफ ए डॉट ds1 प्लस कर्ल ऑफ ए डॉट ds2 प्लस कर्ल ऑफ ए डॉट ds3, और ये क्या हो जाएगा, इसको जब लिखिएगा सिग्मा के टर्म में तो दिस इज सिग्मा i is equal to 1 to n कर्ल ऑफ ए डॉट dsi. Is it clear? और ये किसके बराबर होता है, that is definition of the surface integral. Therefore curl of a dot ds is equal to a dot dl. Is it clear? Any problem? No sir, me no problem. Okay, और लोग के लिए हम एक बार फिर हम ओपन करेंगे, पूछेंगे सबसे, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल जब तक से नहीं बनाइएगा तब तक से प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा। Is it clear? तो चलिए एक वेक्टर फील्ड लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फील्ड D. Is it clear? और D का जो वैल्यू दिया हुआ है, D इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ D इज इक्वल टू
फाई आर स्क्वायर बटे 4 और आई आर। इसका मतलब है कि यहाँ पर डी का जो है दो एक ही कंपोनेंट है, वो रेडियल डायरेक्शन पे है। इज गिवन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, इवैल्यूएट बोथ साइड्स ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बिटवीन r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू 2, और दूसरा थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू 4 एंड r इज इक्वल टू 4। याद रखिएगा यहाँ पे हमको d दिया हुआ है और ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आप जानते हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर थीटा फाई, आर थीटा फाई, और आर 0 से इन्फिनिटी जा सकता है, थीटा 0 से पाई जा सकता है, और जो फाई होता है वो 0 से 2 पाई जा सकता है। और हमको तब डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है? डाइवर्जेंस ऑफ डी डीवी इज इक्वल टू डी डॉट डी एस। अब चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं। हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी दिया हुआ है और आई आर पर है, मतलब थीटा और फाई कंपोनेंट 0 है। तो डाइवर्जेंस ऑफ डी जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में होता है, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा आर, आर स्क्वायर डी आर प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल्टा अपॉन डेल्टा थीटा साइन थीटा डी थीटा प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल्टा डी फाई अपॉन डी फाई। मैंने कहा कि हियर द डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड द फाई, इसलिए सेकंड और थर्ड टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए केवल डी आर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर अपॉन 4। आप जानते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी, अब केवल ये पहला टर्म बचेगा 1 बटे आर स्क्वायर डेल्टा अपॉन डेल्टा आर, आर स्क्वायर डी आर। यहाँ डी आर का वैल्यू को डाल दीजिए और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू आर, यू विल गेट दिस इज इक्वल टू 5 आर। अब कहता है कि वॉल्यूम इनक्लोज्ड, the volume enclosed is between r is equal to 1 and r is equal to 2 in the sphere, and surfaces bound by the volume are surface of the sphere at r is equal to 2 with unit vector ir, and the surface of the sphere at r is equal to 1 with the unit vector minus ir. In a spherical coordinates the differential volume is dv is equal to, अब यहाँ आप देखिएगा कि जो हमारा जो मैंने कहा कि r 0 से r जाता है, थीटा जो है 0 से थीटा 0 से पाई जाता है, और फाई 0 से 2 पाई जाता है। आपको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बताएंगे इसके बाद। तीनों किसी ने कहा था कि सर समझा दीजिएगा हमको कोऑर्डिनेट्स, तो हम समझा देंगे। तो याद रखिएगा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो लाइन एलिमेंट होता है कार्टेशियन में dx dy dz होता है, और स्फेरिकल में जो होता है dr r d थीटा और r sin थीटा d फाई। तो स्फीयर ऐसे होता है, देखिए स्फीयर जो होता है ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। स्फीयर का सरफेस कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा ना, कर्व कर्व, इसलिए दैट इज कॉल्ड द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। सो दैट इज कॉल्ड द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। स्फीयर ऐसे हुआ, ऐसे। इज इट क्लियर? तो फाई का 0 से 2 पाई, तो हमारा जो है ये सरफेस देखिएगा कि हमारा जो डी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कोई भी हमारा जो सरफेस फ्लक्स लीजिएगा तो डी डॉट डी एस बनेगा। तो डी डॉट डी एस बनेगा तो सरफेस क्या होगा? ये सरफेस होगा डियर आर, आर साइन थीटा डी फाई, और कोण, ये कोण है, ऐसे कोण है, तो ये कोण जाएगा कहाँ से? आर थीटा। ये देखिएगा जेड और R1 के बीच का एंगल थीटा है, तो ये जब टुवर्ड्स वाई एक्सिस की तरफ जाएगा तो डी थीटा से डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये जो आर्क लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा हो जाएगा। तो ये टोटल एरिया हो जाएगा दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। और हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे जो वॉल्यूम एलिमेंट हो गया डी आर आर डी थीटा और आर साइन थीटा डी फाई, ये वॉल्यूम निकल गया। एंड डिफरेंशियल सरफेस फॉर ए फिक्स्ड आर इज ds is equal to your r sin theta, this is r sin theta d phi, and the r d theta therefore is equal to r square sin theta d phi. Is it clear? मैंने कहा कि जो R2 सरफेस पे है उस पे dr क्या जाएगा? आउटवर्ड नॉर्मल होगा, इसलिए फ्लक्स क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। और जो हमारा सरफेस है r इज इक्वल टू 1, जो सरफेस r इज इक्वल टू 1 की जब बात करोगे तो हमारा ये जो सरफेस होगा वो निगेटिव IR डायरेक्शन पे होगा। तो हम अब बात करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी डीवी। तो डाइवर्जेंस ऑफ डी निकाल दिए हैं, और डीवी इज इक्वल टू आर डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, ये आ गया इतना। अब वॉल्यूम इंटीग्रल है तो आर कहाँ से कहाँ जाएगा? आर हमारा जो है फ्रॉम 1 से 2 जाएगा। मैंने कहा ना कि आर का रेंज क्या है? फ्रॉम 1 to 2, R1 से R2। और थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा? मैक्सिमम 0 से पाई जाएगा, ऐसे। थीटा जो है ना 0, थीटा हमेशा जेड एक्सिस से एंगल बनाता है, तो ये थीटा हो गया, ये जेड हो गया, दैट इज थीटा। तो 0 से कहाँ जाएगा? पाई जाएगा। और ये देखोगे कि जो फाई प्लेन है वो 0 से 2 पाई में रोटेट करेगा।
तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो गया। और यहाँ पे ये 75 पाई के बराबर आएगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा साइन थीटा डी थीटा ही जो है, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा साइन थीटा डी थीटा को, तो ये, और उसके बाद डी फाई, तो ये हो जाएगा 2 और डी फाई हो जाएगा 2 पाई 4 पाई, और इसके बाद आप इसको सोल्व कीजिएगा, यू विल गेट 75 पाई। उसके बाद आता राइट हैंड साइड डी डॉट डी एस। तो डी डॉट डी एस के लिए डी मालूम है, और एरिया जो है फॉर सरफेस R2 के लिए पॉजिटिव होगा, तो ये निकल गया। प्लस प्लस ये जो किए हैं माइनस हो गया। और आप अगर आप चाहते हैं कि दो टर्म नहीं लिखना, तो आप R को जो है यहाँ पे वेरिएबल R देखिएगा, यहाँ पर R स्क्वायर है, R स्क्वायर है, इसलिए फिर R इज इक्वल टू 1 पे कीजिए, तो ये R इज इक्वल टू 1 पे निगेटिव, मैंने कहा कि निगेटिव IR हो जाएगा। ये फ्लक्स घुस रहा है, ये फ्लक्स निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, इतना माइनस इतना, और ये हो गया। तो इसको जब सोल्व किए तो दिस इज इक्वल टू अगेन जो है 75 पाई, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव। अब दूसरा जो क्वेश्चन मैंने लिखा था, यहाँ पे देखिएगा कि द सेकंड क्वेश्चन रिटन हियर, r इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 2। दूसरा था थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 और r इज इक्वल टू 4। अब आ जाइए, मैंने कहा था कि आप एक बिग सर्किल की कल्पना कीजिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एक बिग सर्किल की कल्पना कीजिए, चाहे जिसका ओरिजिन कहाँ पे है, यहाँ पे है, दिस इज O, ये छूट गया, दिस इज O। Is it clear? This is x axis, this is y axis and this is z axis. Is it clear? अब यहाँ पे कल्पना कीजिए 3D की कल्पना, आंख बंद कर लीजिए, देखिए जो है एक तरबूज की कल्पना कीजिए, उसका सेंटर है। अब क्या देखिएगा, तरबूज का ठीक किसी ऊपर सरफेस पे चले जाइए और वहां पेंसिल से वो गोला खींच दीजिए, पेंसिल से एक राउंड खींच दीजिए, और उस राउंड जो आएगा बाउंड्री, उसके कल्पना कीजिए कि हर एक पॉइंट को आप सेंटर से मिला रहे हैं, तो देखिएगा वो बन जाएगा ये वाला जिसमें बादाम खाते थे, कौन बन जाएगा ना। यस सर, कल्पना कर रहे हैं कि नहीं कल्पना कर रहे हैं? यस सर। हाँ, तो कौन बन गया ना। यस सर। हाँ, मतलब कल्पना कीजिए कि जो स्फीयर है उसके सेंटर पॉइंट पर आ जाइए, और ठीक जो स्फीयर है उसके ऊपर कहीं एक गोल सरफेस घेर दीजिए, पेन से घेर दीजिए, और उस पूरे जो है आउट उसका जो बाउंड्री बना है उसको जो है सेंटर से मिला दीजिएगा, तो देखिएगा कोन बन जाएगा, जैसे कोन बना हुआ है, बन गया ना। कोन बन गया कि नहीं बन गया ये? यस सर। मूंगफली खाया कभी उसमें चनाचूर? यस सर। स्टेशन पे सर, स्टेशन पे। हाँ, स्टेशन पे तो वो सही फिजिक्स समझ में आता है, 3D ऐसे समझ में नहीं आता, उसी तरह समझोगे। तो उसके बाद ये देखो कि ये अब ये तो R हो गया, ये जो लाइन है R है, और ये जो है एक्सिस ऑफ द कोन है, वर्टेक्स कहाँ पे है, सेंटर पे है। तो ये जो R जो रेडियस जो है, ये कोन का जो सरफेस है, ये Z एक्सिस से थीटा कोन बना रहा है, दिस इज थीटा। ये सर पाई बाई 4 का थीटा बना रहा है, तो हमको ये थीटा के वैरी के कहां से कहां करेगा मैक्सिमम, ये थीटा करेगा 0 से पाई बाई 2 तक, बाकी हमको कहां तक निकालना है, 0 से पाई बाई 4 निकालना है। तो थीटा कहां 0 और अपर बाउंड्री कहां जाएगा, पाई बाई 4। अब देखो कोन का दो सरफेस है, एक ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व वाला, तो कर्व सरफेस पे DS2 उसका एक स्मॉल एलिमेंट लिए, और कर्व्ड सरफेस पे ये परपेंडिकुलर होगा, उसको थीटा कहते हैं। अब यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन कीजिएगा, एनी सर्किल का कोई जो पॉइंट होता है, एनी पॉइंट इन द स्पेस, इट इज फॉर्म ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ द 3 प्लेन्स। कार्टेशियन में 3 गो फ्लैट सरफेस होता है, और जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होता है उसमें क्या होता है कि एक सर्किल होता है, चूड़ी सर्किल, और दूसरा होता है तुम्हारा कोन। इज इट क्लियर? एक कोन हो गया, एक कोन हो गया, और एक बिग सर्किल हो गया, और एक फाइव प्लेन हो गया, है ना। तो उस तीनों का जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहां से टेंजेंट खींचोगे हर एक सरफेस पे, तो यूनिट वेक्टर देगा। तो चलो, यूनिट वेक्टर है भाई, तो ये थीटा, तो थीटा सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होगा यूनिट वेक्टर देगा थीटा का, ठीक है। और रेडियल डायरेक्शन पे तुम टेंजेंट खींचोगे इस पे, यहाँ पे, तो ये IR देगा, ये IR, ये हो गया I थीटा। तो जब हम फ्लक्स निकालेंगे D डॉट DS, तो D डॉट DS जब निकालोगे डाइवर्जेंस ऑफ D dV, तो ये अब कोन का भैया एरिया कितना होगा, कोन का एरिया कितना होगा, तो कोन का देखो ये सरफेस हो गया कोन का ऐसे, इसको कहते हैं DS2, दिट इज DR R sin थीटा D फाई, और ये भैया चलेगा इधर की तरफ में, ऐसे ऊपर दो सरफेस है, एक ऐसे है, ऐसे, तो ये फाइव प्लेन का हो गया, दैट इज DR
आर साइन थीटा डी फाई, और दूसरा जो सरफेस होगा ये थीटा वाला होगा आर डी थीटा। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ बन गया दिस इज इक्वल टू आर डी थीटा एंड आर साइन थीटा डी फाई। तो ये हमारा जो है टोटल वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ द कोन निकाल, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये ना वाजिब। वॉल्यूम कैसे बनेगा? मैंने कहा कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वॉल्यूम क्या होता है? डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, तीनों को गुना कर दिए तो ये बन गया वॉल्यूम। और इसको इंटीग्रेट किए, आर कहां से कहां दे रहा है? 0 से 4, थीटा कहां से कहां दे रहा है? 0 से पाई बाई 4, और फाई कहां से कहां घूमता है? 0 से 2 पाई। अगर कोई हेमीस्फीयर ले लो, और हेमीस्फीयर पे तुम जो है अब संतरा ले लो, अब वो दूसरा एग्जांपल दे रहा है, और संतरा के फली को, जो उसका एक जिसको खाते हो फल, उसको तुम जरा घुमाओ तो ऐसे करके, तो कहां से कहां घूमेगा? जहां से चले फिर वहीं पहुंचोगे तो कितना एंगल बनाएगा बताओ तो? 180 सर। बट 360 हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। अब वहां पे यस सर, वो 360 सर। हाँ, तो वो फाइव प्लेन कहलाता है, फाइव प्लेन ऐसे। दिस इज द फाइव प्लेन। समझ में आ गया फाइव प्लेन क्या? यस सर, यस सर। या, और फाइव प्लेन जो है एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है। फाइव प्लेन कहां से एंगल बनाएगा? इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से। ये ऐसे करते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, ये लाइन खींच रहे हैं, ये ठीक है, ये फाइव एंगल। तो यहाँ पे हमारा जो है ये डी डॉट डी एस हो गया, और ये जो है आपका निकल गया डाइवर्जेंस ऑफ डी, और डी डॉट डी एस फॉर S1 और S2, और S1 और S निकाल दिया यहाँ पे आपका जो है एरिया, और ये जो है आपका आ गया दिस इज 588.91, और इस तरह हमारा जो है निकल गया। उसी तरह देखिएगा ये कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड का स्टोक्स थ्योरम का भी मैंने एक प्रूफ दिया है। ये स्टोक्स थ्योरम में दिया हुआ A इक्वल टू एक्स वाई आई एक्स माइनस ट्वाइस एक्स आई वाई, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम ओवर द पाथ शोन इन पिक्चर फिगर 4। तो यहाँ पे देखिएगा कि मैंने क्या है, एक्स वाई आई एक्स माइनस 2xy, और ये पिक्चर में निकालना है, पिक्चर आपको एग्जाम में बना रहेगा। तो यहाँ पे y जब 0 है तो x इज इक्वल टू 0 से 3 है, और x जब 0 है तो y इज इक्वल टू 0 से 3 है, और ये 3 है और ये 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस इज इक्वल टू ए डॉट डी एल, एंड कर्ल ऑफ ए आप जानते हो डिटर्मिनेंट ए आई एक्स आई वाई आई जेड डेल्टा अपॉन डी एक्स डेल्टा अपॉन डी वाई डेल्टा अपॉन डी जेड। जब इसको सोल्व किए तो कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू -2 प्लस एक्स आई जेड इज इट क्लियर? ओके, क्यों? क्योंकि आई जेड का ही कॉम्पोनेंट बचेगा, इतना माइनस इतना, और आ गया ये इतना। अब लेफ्ट हैंड साइड कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस, तो कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा? dx और dy होगा एरिया ना, z डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे dx dy एरिया हो गया। तो भैया, तो आप कर्ल ऑफ ए डॉट dx dy कहिएगा, सर dx dy क्यों हो गया? क्योंकि z इज नॉर्मल टू दिस सरफेस, इसलिए dx dy इसका एरिया हो गया, तो dx dy। चलिए, तो कहिएगा x कहाँ से कहाँ जा रहा है, y कहाँ से कहाँ जा रहा है? 0 से 3 जा रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा? रूट अंडर 9 माइनस वाई स्क्वायर। और इसको क्या किए? इसको जो है हम लोग इंटीग्रेट कर दिए, बड़ा सिंपल इंटीग्रेशन है, और यू गेट दिस वन। और उसके बाद फिर आप कहिएगा सर तो कर्ल ऑफ ए डॉट डीएस निकाले, अब ए डॉट डीएल निकाले तो कहाँ से कहाँ चलिएगा? यहाँ से यहाँ आइएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाइएगा, और फिर यहाँ से यहाँ आइएगा, ये पूरे लूप में। तो पूरे लूप का देखिए डॉट डीएल निकाल लिए हैं यहाँ पे, दिस वन हियर। इधर 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 को इधर को इधर को इधर को, ए डॉट डी एल फॉर ओ ऑरिजिन टू ए से बी, अब बी से फिर ऑरिजिन पर आ गए, एंड ऑन ओ ए वाई इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू इतना, देयरफॉर ए डॉट डी एल निकाल लिए। फिर तुम्हारा ऑन ए बी ए डॉट डी एल निकाल लिए, है ना, इक्वेशन ऑफ ए क्वार्टर सर्किल। और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, 0 स्मॉलर देन एक्स वाई स्मॉलर देन 3, ए डॉट डी एल का वैल्यू निकाल लिए, इंटीग्रेट कर दिए, यू विल गेट -9 1 प्लस वाई बाई 2, और ऑन ये टोटल निकल गया। ठीक है, ये जस्ट नीचे वाला पेज को हम इक्वेशन को सोल्व किए थे, इसलिए। इज इट क्लियर? ओके, यस सर। तो ये टोटल कंप्लीट आपका जो है वेक्टर कैलकुलस हो गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेक्टर फील्ड, व्हाट इज द वेक्टर फील्ड, व्हाट इज द फील्ड इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी जो है डिपेंड्स अपॉन, कहते हैं ना, if the field is a region at each point of which there is a corresponding physical function।
कहिएगा कि भाई फील्ड क्या है। तो फील्ड जो है हम लोग कहते हैं कि इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन द if any physical quantity, it varies from point to point. It means that it depends upon the coordinates of a point. In that case, it may be expressed as the continuous function of position of point. It is also called the point function. And the region in which it is expressed as a continuous function of position of point, it is called the field. We know that on the basis of we know that any physical quantity classified into two quantity, that is a scalar vector, and if the physical quantity is a scalar and the region in which the scalar quantity is expressed as a continuous function, then this is called the scalar field. Example is the distribution of temperature inside a hot metallic rod whose one end is kept at hot and other is at cold. And also the variation of the potential inside the electric field. It is also the example of the classical example of the gradient of the scalar field. And the gradient of the scalar field, it is a vector quantity whose magnitude is the maximum space rate variation of the your scalar maximum space rate variation of the scalar field, okay, and normal to the surface, and the negative gradient of the scalar potential, that is called the electric field. And we know that the graphical, it is represented by a surface known as the equiscalar surface. In the case of the hot metallic rod, it is called the isothermal surface. In the case of the electrostat, it is called the your equipotential surface. Is it clear? जब एग्जांपल भी मैंने दिया था पोटेंशियोमीटर का दिया था, उसके बाद हीट का दिया था कि ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर सेटअप होता है, इट सेटअप द फ्लो ऑफ द हीट. इज इट क्लियर? उसी तरह का ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव तो हाई पॉजिटिव पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. सो द ग्रेडियंट क्या कहते हैं इन टेम्परेचर, है ना, वो सेटअप करता है. जैसे ग्रेडियंट इन टेम्परेचर सेटअप करता है, आपका फ्लो ऑफ द करंट स्टार्ट होता है. उसी तरह ग्रेडियंट इन टेम्परेचर सेटअप होता है, फ्लो ऑफ द हीट स्टार्ट होता है, एनर्जी. फिर हम लोग डाइवर्जेंस की बात किए थे कि डाइवर्जेंस क्या है. फिर हम लोगों ने उसका कंसेप्ट देखा था, फिजिकल कंसेप्ट देखा था कि डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है, इट मेजर्स द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड at a given point, is it through the point. If the divergence of the vector field is positive, it means that the outward flux is greater than the inward flux, and it means that there is a source of the field. And if the divergence of the vector field is negative, it means that the outgoing flux is less than the incoming flux. It means that there is a sink of the field in a region, and if is equal to zero, neither source nor sink, that is the continuous flow of the flux. Is it clear? Divergence, मैंने कहा था कि the divergence of the velocity of the flow of the fluid is nothing but the divergence of V is positive. It means that the fluid is expanding, the density is decreasing with time. And if the divergence of V is negative, it means that the fluid is contracting and the density is increasing with the time. इस तरह हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था. फिर हम लोगों ने कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड के बारे में पढ़ा, उसका फिजिकल कहा कि इट इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स. और हम लोगों ने कहा था कि अगर कर्ल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द फ्लूइड लेते हो, इट इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ द फ्लूइड, दैट इज ट्वाइस ओमेगा. हम लोगों ने इसका प्रमाणित भी किया था. फिर हम लोगों ने प्रूफ किया कि इफ द कर्ल ऑफ द योर H, curl of the magnetic field intensity due to the current flowing through a filamentary conductor is equal to the current density. Is it clear? And it is current density near to the vicinity. Okay. और इस तरह हम लोगों ने जो है वो कहा था कि कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू J, है ना. फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोगों ने डिस्कस किया था. उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि इफ द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड इज जीरो, अगर कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड जीरो हो गया तो ये कर्ल ऑफ ग्रेड फाई होता है. एंड कर्ल ऑफ ग्रेड फाई, अगर कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड तभी जीरो होगा जब फील्ड जो है ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा. Is it clear? And that field is called the lamellar field, conservative field, non-curl field. अगर divergence of vector field zero हो जाता है तो divergence of curl of any vector field zero होता है. It means that the vector field is a rotational vector having the curl or the solenoidal vector. Is it clear? So the curl of gradient of phi is equal to zero, and divergence of curl of any vector field is equal to zero. Later on, we have already discussed the divergence theorem
as well as the Stokes theorem and some problems related with divergence theorem and the Stokes theorem. So in the next class, we will discuss in brief about the coordinate system. आपको थोड़ा सा बता देंगे कि coordinate में एक कार्टेशियन, spherical और cylindrical coordinate के concept क्या है, उसमें line element क्या होता है, उसमें divergence of curl gradient कैसे निकालते हैं, ये तो आपको एक ट्रिक बता देंगे, आप भुलाइएगा मत. तो उसके बाद फिर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे योर Laplace's equation, Poisson's equation, problems based on both Laplace's or Poisson's equation, as well as the uniqueness theorem, है ना? And then after your dialectric, that is the what do you mean by dialectric? That is the the relation between displacement vector electric field and the polarization, dielectric polarization, and dielectric that is a dielectric sphere in electric field. And then after मेरा core portion है that is the electromagnetic field. Portion अब जो पूछोगे हम बता देंगे सब. कल तो बच्चा पूछा था polarization of sorry interference के बारे में, तो उसने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर कि जो हम लोग लेते हैं इंटरफेरेंस में वो किस तरह का वेव साइनोसाइड, क्या टैन कॉट वेव होता? नहीं, हम लोग जब वेव की बात उठती है तो वेवलेंथ होता है. इज इट क्लियर? जब हम प्लेन वेव की बात करते हैं तो प्लेन वेव का मतलब ही होता है कि हैविंग द प्लेन ऑफ कांस्टेंट फेज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर. ओके, तो उस बाद में जहां वेव का कॉन्सेप्ट आया वहां पे तो लैम्डा जो है इट प्लेज एन वेरी सिग्निफिकेंट रोल. अगर वेवलेंथ सिग्निफिकेंट हो जाता है, और वेवलेंथ का मतलब ही होता है देयर इज समथिंग पीरियोडिसिटी. सो द ग्रुप ऑफ जो फिजिकल फेनोमेना मतलब कहते हैं ना कि रिपीटेशन आफ्टर ए certain period of time known as the wave, and it is always represented by function x minus vt, that is sin omega t minus kx, cos omega t minus kx, or e minus I omega t minus kx. So in general we have the forward traveling wave and the backward traveling wave. ताकि जब सोर्स से अगर प्रोग्रेसिव वेव है तो किसी एक डायरेक्शन में जाएगी, इधर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और द कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स. बाकी जब हम बात करते हैं सोर्स का तो फेजर टर्म की बात करते हैं कि जब सोर्स ऑसिलेटरी है, जिसका मतलब वेव भी जो है फोर्स्ड फिनोमेना है, उसका भी वाइब्रेशन का नेचर वही होगा जो सोर्स का नेचर होगा. और ये रियल वेव की बात करते हैं तो रियल वेव में रियल ई आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जब रियल ई माइनस आई ओमेगा टी माइनस करोगे तो कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन. तो जब रियल की बात करोगे तो कॉस ओमेगा रियल हो जाएगा, देयरफॉर कॉस ओमेगा टी माइनस के. बाकी जब हम ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि दैट इज अ फॉरवर्ड वेव बैकवर्ड वेव, तो तुम कॉस को भी ले सकते हो और साइन को भी ले सकते हो. ओके, बाकी इन जनरल हम लोग कॉस लेते हैं. वो रियल वेव की जो बात करते हैं उसके ऊपर एक कैप जो है वेव की बात करते हैं, रियल वेव. इज इट क्लियर? तो इसलिए जो है जो कहिए वो विषय पढ़ा देंगे सब, हार्मोनिक मोशन, डैम्ड, फ्री वाइब, सब कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, एकदम बहुत आसान है. खाली दिमाग में रखोगे कैसे होता है. अगर कोई फर्स्ट प्रिंसिपल याद है तो यू कैन डिराइव एनीथिंग. मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा अच्छा से कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सब कुछ डिराइव कर लीजिए. सो एनी प्रॉब्लम? अच्छा, तो अब देखते हैं अपने बच्चों को, हमारे कितने बार आते हैं जरा. हम अब स्क्रीन पर मैं आ रहा हूँ.